Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. आज के वीडियो में we will be talking about the print function and all the parameters of the print function. ठीक है, तो print function basically आपको जैसे मैंने last section में भी बताया था, it is used to print the messages. So print function का main जो पर्पस है वो ये है कि कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है या कोई मैसेजेस को प्रिंट करना. अब इसका सिंटैक्स आपको बताने से पहले मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहूँगी. Before I just show you a couple of things. So suppose if I say print hi, मैंने साथ साथ I will be doing the work simultaneously in the interactive mode as well as the script mode ताकि आप लोगों को चीज़ें clear हो जाए. And then I say hi and then I say students. So in this case there are two messages that I've used. When I print this, it comes this. Now if I just use the same thing over here and I try to execute it and I say print hi students, how are you? Okay, now what do you observe? You observe when I execute that first of all, if there is a comma and there is no gap that is over there in these cursors, there's no gap in between the double quotes, it still gives me a gap of that one column. One thing. Second is how are you? That means every time there is a print command which is starting, it is starting from a new line. So there is an automatic line break that we have, which means there is a separator separated by a comma and there is a line break automatically. Therefore, just to recall or just to tell that print function has a lot of parameters, but we'll basically be concentrating on three important parameters. First is the message, which are separated with a comma, which may or may not be separated with the comma, and therefore there is a parameter called as sep, where the sep has a default value of one column blank space. और सेकेंड पैरामीटर एन हमें देता है लाइन ब्रेक विच इज स्लैश एन. स्लैश का मतलब जो होता है दैट इज एस्केप सीक्वेंस, वो हम बाद में देखेंगे. सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप दो प्रिंट कमांड स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक आता है, और अगर आप दो मैसेजेस को सेपरेट करते हैं यूजिंग अ कॉमा तो आपके पास ये आता है. अच्छा, सपोज मैं अब इसी फर्स्ट कमांड को चेंज करती हूँ और सेप यूज़ करती हूँ. सो अभी तक सेप हमारा क्या था? लाइन ब्रेक था. सपोज मैंने इसको यहाँ पर कर दिया कैरेट साइन. ऑल राइट, सो देखें कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा यहाँ पर. सो हमारे पास कैन यू सी, सो हाई के बाद स्पेस की जगह क्या आ गया? कैरेट साइन आ गया. मतलब जितने भी मैसेजेस हैं अगर हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, आई एम सपोज टू यूज सेप, बट सेप विल ओनली बी इफेक्टिव when you have more than one डेटा सेपरेटेड विद अ कॉमा. बिकॉज अगर आप इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, सिंस देर वॉज ओनली सिंगल मैसेज एंड देर वॉज नो मैसेज सेपरेटेड विद अ कॉमा. सो दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज एंड को यूज करके देखते हैं कि एंड का पर्पस क्या है. सो अगर हमें लाइन ब्रेक नहीं चाहिए और हमें यहाँ पर चाहिए एट द रेट एट द रेट एट द रेट. Okay, now if I try to execute, please have a look at the difference in the output. Can you see this? So in place of the line break, which automatically has to come after s, because we have specified that slash n should be replaced with at the rate at the rate at the rate and at the rate, therefore line break के लिए कर्सर नीचे नहीं गया, सेम लाइन पे रहा, और यहाँ पर इसके बाद आपका क्या प्रिंट हो गया? हाउ आर यू. लेकिन क्या ये एट द रेट या एंड जो हमने लाइन ब्रेक को अवॉइड करा है, ये सारी कमांड्स कंसेक्यूटिव कमांड्स में एप्लीकेबल है? सो आप खुद चेक करेंगे, ये बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल है. ये सिर्फ जिस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आपने लिखा है उसके कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट तक एप्लीकेबल. अब देखिए, इसको रीड ऐसे करिए ना, हाय देन a gap of caret sign students and no line break. So the cursor is right over there, and therefore at the rate will be printed, and this print command automatically starts immediately after this how are you. But how are you वाली जो print statement है, इसके separator caret तो है लेकिन इसके पास end is by default line break. Therefore cursor यहाँ से print होने के बाद next line पे आएगा, and therefore good will be printed from the next line. Okay, so we have sep and we have end. By default the value of end is slash n. By default the value of sep is a single column space. Okay, now let's talk about the simple variable declaration.
ऑल राइट, हमने लास्ट टाइम रूल्स करे थे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप मतलब कौन सी तरह का आप डेटा स्टोर करेंगे वो नहीं होता है। आप वो ऑटोमेटिकली जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे वो वैल्यू उसका डेटा टाइप ले लेता है। ओके, सो अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो 10 एक कौन सी वैल्यू है, कौन सा लिटरल वैल्यू है, इंटीजर। सो देयरफॉर a नाउ विल बिकम अ वेरिएबल विच इज स्टोरिंग एन इंटीजर वैल्यू। इसको पता कैसे करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन और होता है टाइप। टाइप बताता है कि जिस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करा है उसका डेटा टाइप क्या है। अब यहाँ पर मैंने लिया a b इज इक्वल टू hello, okay, and then I use the same thing, and if I say print b, I need to know what is the data type of b. Similarly, I take another variable c is equal to 12.67, and then I say print, and I need to know the type of c in that case. Let's take two or more few more values just to understand what we are talking about. So d is equal to हमने लिया say 10 plus 34j, okay, and then now let me have this j in small letters. So if I say print, यहाँ पर इसको करते हैं, this is j and this I'm printing, the variable is d, and finally I'll have e is equal to true, okay, and then I say print e. So हमने बेसिकली 5 वेरिएबल्स लिए हैं। इंटीजर हमारे हिसाब से है, ये स्ट्रिंग हमारे हिसाब से है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और ये ट्रू। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को, आप खुद देखिए कि फर्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट डिक्लेयर करके क्या दिखा देता है, इंटीजर। देन सेकंड का स्ट्रिंग, सी का क्या है, फ्लोट, डी का क्या है, कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट वाले ई का क्या है, बूलियन। सो जैसे ही आप वैल्यू स्टोर करते हैं वैसे ही उसकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो जाती है, एंड इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ corresponding data type for depending upon the value. ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन मतलब वो डेटा टाइप असाइन करते हैं। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या तरीके हैं वैल्यूज को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, सपोज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20.1, ओके, तो ये एक तरीका है डिक्लेयर करने का। सो दिस इज वन ऑफ द वेज, which means I can assign the value to the variable in two different lines, and I will going to see the result as 10 and 20.1. बट इसी चीज को अगर मुझे सिंगल लाइन में करना है तो आपको रिमेंबर करना है, दूसरा तरीका है separating it with a semicolon. So if I try to execute, it is giving me the same result. The third way is if I say a comma b is equal to 10 comma 20.1, it is just the same thing. So these are few ways of declaring the variable. Python आपको बहुत वेरिएशन देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसी चीज को करते हैं a is equal to 10 और आप बोलेंगे जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमा कर देते हैं और b इज इक्वल टू 20, तो यहाँ आपके पास एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और सिंटैक्स एरर आएगा, इट कांट असाइन टू लिटरल लाइक दिस। सो कॉमा आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज यूज अ सेमीकोलन। सो आई होप ना आपको ये समझ में आ गया है कि वेरिएबल्स के टाइप्स कैसे हमें पता लगते हैं, और दूसरा वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं विद दी वैल्यूज। अब सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है, सो आई कैन ऑल्सो से लाइक दिस, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 25. नाउ इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू विल सी दैट a और b की दोनों की वैल्यू सेम है। सो क्विक रिविजन देखें, हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, मैंने आपको भी यही बताया था कि दैट द डेटा टाइप इज implicitly declared on the basis of the values assigned. Okay, and there are different ways of assigning the value. You can assign them in two different lines. You can assign them as a10 semicolon b and so on. So you can assign the value, but remember अगर आपको डेटा टाइप देखना है किसी वेरिएबल का, आप सीधा टाइप फंक्शन यूज करेंगे and you will be able to see that. अब हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम क्या मैसेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। सो यस, अभी तक हमने सिर्फ मैसेजेस या सिर्फ वेरिएबल देखा ना। अब अगर हम देखते हैं कि इफ आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स इज,
ओके पहले सम नहीं निकालते, अभी लिखते हैं द टू नंबर्स इज, अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी करेंगे, इज आई से कॉमा ए कॉमा b. Okay, so if I try to execute this, what will going to happen? I will see the two answers. लेकिन अगर इसी चीज को मैं सेपरेट कर दूं और मैं बोल दूं परसेंटेज साइन इन सिंगल, it has to be a character, children, always remember that. Now if I try to execute, can you see the first कॉमा के बाद पहला परसेंटेज आएगा, फिर दूसरे कॉमा के बाद दूसरा परसेंटेज आएगा, एंड दिस वे इट विल गोइंग टू, सो यू दिस इज द वे बाय विच यू कैन हैव अ प्रिंट स्टेटमेंट विद द मैसेज एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. ओके नाउ नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं कि डेटा अभी तक तो हम असाइन कर रहे थे, अब हम डेटा लेंगे कैसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. सो वी हैव another function called as input function which is used to accept the value. So what is an input function? It accepts a value during the execution, लेकिन जो default value वो लेता है by default वो कौन सी value लेता है? string value लेता है. ओके अब इसी को मैं चेंज करती हूँ. सपोज आई से a is equal to input, right? enter a number. सो हम बाय डिफॉल्ट जब इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो हम ए ही लिखते हैं यहाँ पे अनकॉमा. इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस नाउ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, कैन यू सी इट इज आस्किंग मी व्हाट इज द वैल्यू. सो इफ आई से 56 आई विल सी द टू नंबर मैसेज. ऑफकोर्स ये अलग सा है, द नंबर इज 56. लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी. द नंबर इज, अब मैंने ए लिखा और ए के साथ दोबारा ए लिखा कॉमा. सो मैं भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको नहीं बताना चाह रही हूँ. आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो 23 mod 23. ओके लेकिन अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ. आई कैन पुट अ कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. इट इज ऑलवेज टेकन एज अ स्ट्रिंग ओनली. मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगी इसको, इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड आई से 12.5678, it is not a floating value. Okay, it will going to show me this as a string value. Okay, so now if I just change it to integer, I don't want the user to have a floating point value, I don't want the user to have a string value. So इसके अंदर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है जो आपको याद रखनी है. So int फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने स्ट्रिंग डाली इनपुट के अंदर, जैसे आपने 45 डाला, तो 45 इज बेसिकली अ स्ट्रिंग. मैंने आपको बताया था ना कि इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, लेकिन उसी 45 को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में. सो नाउ इफ आई ट्राई टू से a प्लस 2 and I re-execute my program, तो re-execute कर देगा. If I say 45, I will see the answer 47. Okay. Now if I try to have a floating point value, तो क्या होता है? So suppose मैंने इसके अंदर यहाँ डाला 12.56. देखिए ध्यान से, अगर आप एक इंटीजर, जो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना ना, int function cannot convert either a string value or a floating point value into an integer. So you will always going to get an exception called as value error. हम exceptions के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे. Okay, so remember, if it is integer, it has to be an integer value only. Similarly, if I try to execute and try to enter a string value, in this case as a, b, so again I will going to get an error. Similarly, if I want it to have a floating point value, अच्छा float में interesting बात क्या है कि अगर मैं floating point value variable में सिर्फ इंटीजर डालती हूँ, तो वो इंटीजर तो ले लेगा. क्यों लेगा वो? क्योंकि उसको स्टोर कैसे करेगा? 0.0 के साथ. So 12 plus 2 becomes 14. 14.0 is something which I will going to see as the answer separated with a percentage sign. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सिंटैक्स हमारा बहुत सिंपल सा है. इट स्टोर्स अ स्ट्रिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर हमारे को इंटीजर वैल्यू चाहिए, वी हैव टू यूज एन इंट फंक्शन. इफ आई वांट अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, आई हैव टू यूज अ फ्लोट फंक्शन फॉर दैट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. अब हमें पता लग गया कि हमें वेरिएबल्स के अंदर सीधा सीधा वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है और साथ में एक्सेप्ट कैसे करनी है. और इस वीडियो का लास्ट सेक्शन हम करेंगे कमेंट्स इन पाइथन. देखिए, दो तरह के कमेंट्स होते हैं. कई बार कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट. आपने देखा होगा, मैं बहुत देर से बीच बीच में कई बार यहाँ पर हैश करके भी कुछ लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा हैश ए एक्सेप्ट्स int, no, it's float value, na? So it's float value
only. Okay, so here this line, this whatever I've written after hash does not get executed. So if I execute my program, I'm just entering the value and the rest of the things are not getting executed. Okay, so this is nothing but a reference for me as a programmer, and that reference is given in the form of a comment. When it is given in a single line, you have to started with a hash, and this is called as a single line comment. सिंगल लाइन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसी लाइन तक एप्लीकेबल है, नेक्स्ट लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर मैंने लिखा कि ये प्रोग्राम्स किसने लिखा है, सी एस भाषा ने, तो ये प्रोग्राम के लिए सी एस भाषा ने लिखा है. सो प्रोग्राम बाय सी एस भाषा ऑन June 5th. Okay, so 2020. Now these are two lines. दो तरीके हैं, या तो अगर मुझे इसको भी कमेंट लगाना है और यहाँ पर भी लगाना. कई बार आपका कमेंट बहुत लंबा भी होता है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है आपको हैश लगाना है. आप सिर्फ क्या करें, बिगिनिंग ऑफ द कमेंट स्टार्ट करें 3 सिंगल कोट से, और दूसरा ही लास्ट उसको एंड करें 3 सिंगल कोट से. जैसे ही आपने यहाँ पर बिगिनिंग और एंडिंग किया, ये क्या बन गया, कमेंट, और रेस्ट ऑफ द थिंग इज नॉट कमेंट. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, बाकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी एक्सेप्ट वॉट एवर इज इनक्लोज इन कोट्स. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन. ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है 3 डबल कोट्स. सो 3 डबल कोट्स विल ऑल्सो बिकम a comment. Therefore, when you want to provide a single line comment, you use a hash. When you want to provide a double line comment, you use either 3 single quotes or 3 double quotes. So, what is a comment? These are the statements which are for reference of a programmer. They are not to be executed. And 2 types are there: सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कॉमेंट. सो सिंगल लाइन मैंने आपको बता दिया, हैश के बाद आप जो भी लिखेंगे इन दैट लाइन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. लेकिन मल्टी लाइन या तो 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स में आपको इनक्लोज करना पड़ेगा, एंड इट विल बी टेकन एज ई comment. So I hope children आज का section आपको समझ में आया है, and you have now, you're becoming more slowly comfortable with how you're supposed to use a print command with the variables and messages, and what is the purpose of SEPNN. So if you have any questions and any queries, do write under the comment section, and slowly and gradually I'll start preparing a 5 question quiz also, for which you will see the link under this video, okay, in the description. So do try that, and send me the feedback also. So have a lovely day, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much.